خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم کسی ایک ایسی آرگنائزیشن سے اور ان کے ریپرزینٹیو سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، خود بھی ان سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں، جو خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں بغیر کسی لالچ کے۔ صرف ایک لالچ ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ، اس کا رسول اور جن کی خدمت کر رہے ہیں ان کا دل خوش ہو جائے۔ تو یہ سارا کام ہوتا ہے نیکیوں کے حصول کے لیے، اسی لیے ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے ایک نیکی۔ ایک نیکی میں آج ہمارے مہمان ہیں جناب نجم الثاقب حمید صاحب، جو اسکائپ پر ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ شریف صاحب؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ اور یہاں پر اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر شہاب الحسن صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، آپ بھی تشریف لائے۔ بہت شکریہ۔ LRBT سے تعلق ہے، LRBT یعنی آنکھوں کے لیے یا آنکھوں کے علاج کے لیے اتنا بہترین ہاسپٹل، جدید سہولتوں سے آراستہ اور سسٹم، پروفیشنلزم، ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ لیکن ہم پہلے ان کا ایک پیکیج دیکھتے ہیں تاکہ سیکھنے میں اور سمجھنے میں مدد ملے کہ LRBT کس طرح کام کر رہی ہے۔ اس کے بعد ثاقب صاحب سے کچھ بات کریں گے اور پھر شہاب صاحب سے کریں گے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں پیکیج۔ زندگی کتنی خوبصورت ہے یہ ہم اور آپ تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے تقریباً 26 لاکھ بچے اس خوشی سے محروم ہیں۔ ایسی ہی ایک بچی 6 سالہ مریم ہے، جسے ایک دن گھر میں کھیلتے کھیلتے آنکھ پر چوٹ لگی۔ قریبی ڈاکٹر کی دوا سے مریم بظاہر تو ٹھیک ہو گئی، لیکن پھر 2 ماہ بعد مریم کی آنکھ میں سفید دھبا نظر آنے لگا۔ جہاں 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہے، وہاں پر ڈاکٹر نے بتایا کہ مریم کی آنکھ میں سفید موتیاں اتر آیا ہے۔ پھر جیسے مصیبتوں کا پہاڑ ہم پہ ٹوٹ پڑا، پھر کسی پڑوسی نے ہمیں LRBT کا بتایا۔ کچھ ایسی ہی مشکلات بھری کہانی سکھر کے 10 سالہ شیر محمد کی ہے، جس کی بینائی بچپن سے کمزور تھی اور قسم پرسی کا شکار خاندان اسے دن بدن اندھیروں میں جاتا دیکھ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ خدا کسی دشمن کو بھی اولاد کی مشکل نہ دکھائے۔ میں نے اپنی ہر کوشش کر ڈالی، ہم جیسے غریب علاج کے لیے پیسے کہاں سے لائیں۔ کراچی کام کے لیے آیا تو LRBT ہاسپٹل کا پتہ چلا، جہاں میرے بیٹے کا مفت علاج ہوا۔ شکریہ LRBT۔ آج مریم اور شیر دونوں کی زندگی میں روشنیاں لوٹ آئی ہیں۔ شکریہ LRBT، اب میں خوب پڑھوں گا، ایک دن میں بھی ڈاکٹر بنوں گا اور سب کی مدد کروں گا۔ شکریہ LRBT، اب میں فیصلہ اسکول جاؤں گی۔ LRBT میں یہ سب ممکن ہوا ہے آپ کی مدد سے۔ تو پھر آئیں اس رمضان اپنی نیکیوں کے نور سے ایسے بچوں کی زندگیوں میں اجالا بھر دیں، کیونکہ 26 لاکھ بچے اب بھی منتظر ہیں۔ سبحان اللہ، اور مجھے بھی کہنا پڑے گا شکریہ LRBT۔ کیسے ہیں ثاقب صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اچھا، سب سے پہلے یہ بتائیں کتنے سال ہو گئے اب LRBT کو؟ LRBT کو جی کام کرتے ہوئے 35 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا، اس کی ٹرسٹ ڈیڈ ٹائم سے کوئی 36 سال ہو گئے۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ بتائیں کہ اب تک کتنے لوگوں کا علاج کر لیا ہوگا؟ تو ہم نے 4 کروڑ 40 لاکھ لوگوں کا جی ان 35 سالوں کے اندر علاج کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، زیادہ تر بیماریاں آنکھوں سے متعلق کون سی آپ کے پاس آتی ہیں؟ نہیں، ہمارے پاس تو جی تقریباً ہر قسم کی آنکھ کا جو مرض ہے اس کا علاج ہے جی۔ ٹھیک ہے، پیشنٹ بھی ہیں۔ لیکن میں آپ کو پہلے یہ سمجھا دوں کہ LRBT ایک ہسپتال نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے 19 ہسپتال ہیں، ہمارے 58 کلینکس ہیں، ٹھیک ہے، ان کا جان سارے پاکستان کے اندر بچھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اور موسٹ پاکستانیز LRBT کے کسی فیسلٹی پہ جا کے 3 گھنٹوں کے اندر اندر بس کے سفر سے علاج کروا سکتے ہیں مفت۔ اچھا، ماشاءاللہ جی، تو ان میں دیکھیں جی، یہ جو ہمارے جو ہسپتال ہیں ان میں تو ہر قسم کے جو علاج ہے نا، چھوٹے سے چھوٹا تو ہوتا ہے ریفریکشن، اس سے بڑا یہ ہے کہ کوئی آنکھوں کی دوائی چاہیے ہے تو وہ دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بھئی سرجری اگر ہو
सफेद मोतिया भी होता है, पर्दे की सर्जरी भी होती है, बच्चों की सर्जरी बहुत पेचीदा होती है, वो अलहदा है। और उसके बाद ये है कि जी ये जो दोनों ज़ियाबतीस जिनको होती है उनकी आंखों पे असर पड़ता है उसका। अच्छा। उस पर हम लेजर ट्रीटमेंट भी करते हैं, सर्जरी भी करते हैं। अच्छा। इंजेक्शन आंखों में भी लगाते हैं जिससे वो जो कैपिलरीज ब्लीड कर रही होती है ना वो रुक जाती है। सही। तो ये हर चीज समय आप जो कह दीजिए वो है पाकिस्तान में होता है। क्या बात है। अच्छा, आपने कहा कि पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, तो किस तरह से फैला हुआ है? हॉस्पिटल्स ही आपके हैं या आपने कुछ और हॉस्पिटल्स एडॉप्ट कर लिए हैं, या सिर्फ कुछ जगहों पे छोटे मराकिज हैं, कुछ जगहों पे बड़े हैं? किस तरह से फैला है? नहीं, ये सारे के सारे NRBT ओन्ड अस्पताल हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो किसी से हमने लिए नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये गवर्नमेंट के भी नहीं है, ये तो हमारे से बिल्कुल ये तो अपनी मदद आप करने का इनिशिएटिव है जी, जब से ये शुरू है। सही। और दूसरी बात ये, अस्पताल बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। सही। बड़े शहरों के अंदर टर्शरी हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कराची है, लाहौर है, और छोटे शहरों के अंदर सेकेंडरी हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन है, और टर्शरी हॉस्पिटल्स में हर किस्म का इलाज होता है, इंक्लूडिंग पर्दे की सर्जरी। सेकेंडरी हॉस्पिटल्स में वो पर्दे की नहीं होता, बच्चों की भी कम चीजों पे सर्जरीज होती है, ठीक है, लेकिन वो ज्यादातर हो जाती है। सही। अच्छा, ये बताइए कि कितने इखराजात नजम साकिब साहब हो जाते होंगे आपके पूरे साल में, इस पूरे निजाम पर, पूरे पाकिस्तान में? देखिए जी, देखिए ना, हमारे हर साल हमारे पास 33 लाख लोग आते हैं इलाज 33 लाख लोग? जी, जिनमें से 3 लाख सर्जरीज होती हैं। अच्छा। अब इन सारों का इलाज करने के लिए हमें 1 अरब और 50 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है, मतलब 1.5 अरब। ठीक है। तो किस तरह पूरा करते हैं? ज्यादातर फंडिंग का जरिया क्या है? सारे के सारा जो फंडिंग है ना जी, वो आता है अतियात और ज़कात से। अच्छा। ये तो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में है 90% पाकिस्तान से आता है, 10% बाहर से आता है। अच्छा। बाहर से भी जो आता है वो भी पाकिस्तानी है। अच्छा। जो 90% है वो तो है ही पाकिस्तानी। सही। तो ये हर किस्म के लोग, मुखैर हजरात, जो वैसे भी दरमियाने तबके के लोग, ये सारे हमें। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप लाइन पे रहिएगा, आपसे दोबारा आपको जहमत दूंगा। अच्छा, शाहुल हसन साहब, ये बताएं, मेरा सवाल ये था कि पाकिस्तान में आंखों की बीमारियां जितनी भी हैं, उसमें से ज्यादातर कॉमन बीमारियां क्या हैं जो आपके पास आती हैं? जी, जैसे मेंशन कर चुके हैं कि हमारे पास आने वाली तो बहुत सारी, उसमें सबसे कॉमन जो है वो मोतिया है। मोतिया, बिल्कुल। और ऑपरेशन भी सबसे ज्यादा मोतिया के ही आपके पास होते हैं? जी, हमारे यहाँ जैसे मेरा ताल्लुक कराची के एक ब्रांच से है, ऑल्दो आई एम पार्ट ऑफ LRBT, पूरा पाकिस्तानी हमारा है, तो पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो एक दिन में LRBT में 1000 सर्जरी पूरे पाकिस्तान में हो रही है। 1000 सर्जरी, बिल्कुल। और कराची की अगर आप बात ले लीजिए तो कराची की जो कोरंगी में ब्रांच है और एक नॉर्थ कराची में ब्रांच है, कोरंगी की ब्रांच में ऑलमोस्ट 100-110 ऑपरेशन रोजाना। अच्छा। उसमें से तकरीबन 80% जो है, 75% जो होते हैं वो मोतिया से ताल्लुक है। मैं ज़ईफ लोगों की बात कर रहा हूँ, ऑल्दो मोतिया बच्चों में भी पाया जाता है, उनकी मैं अभी ऑपरेशन की परसेंटेज आपको नहीं बता रहा। अच्छा, नजर का कमजोर होना वगैरह ये लोग आते हैं आपके पास? जी, ये तो ऑपरेशन वाली चीज नहीं होगी ना, ये तो बच्चे आ गए हमारे पास, क्योंकि वो एज बहुत क्रूशियल है जी। हमारी जैसे LRBT कोरंगी की ब्रांच को आप ले लें तो एक पूरा फ्लोर जो है वो बच्चों का है। अच्छा। रोजाना 150 बच्चे आ रहे होते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के साथ। डेफिनेटली उसमें सबसे ज्यादा जो कंप्लेन होती है बच्चों की, वो गिरती भी नजर है, और उनको चश्मे का सही नंबर मिल जाना, सही मौके पे मिल जाना, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर बच्चों को चश्मे का नंबर ना मिले तो उनकी नजर ऐसी गिर सकती है कि फिर उसका कोई इलाज अवेलेबल नहीं होता। ओहो, मतलब ये पहली बार, यकीनन बहुत से लोग पहली बार ये सुन रहे होंगे कि आंखों की बीमारियां इतनी हैं कि सिर्फ LRBT पूरे पाकिस्तान में कमोबेश 1000 ऑपरेशंस करता है डेली। जी। और कराची की जिस ब्रांच का यानी कोरंगी का तस्करा किया जा रहा है, वहां 125 से लेकर 150 ऑपरेशन रोजाना होते हैं, और बच्चों में आंखों की बीमारियां जो है वो ज्यादातर गिरती हुई नजर के बायस जो है वो बीमारियां हो रही हैं।
जी यकीनन बहुत तशवीश की बात है। अच्छा अब ये बताएं कि सिस्टम क्या है, किसी गरीब को अगर आंख का कोई मसला है वो आपके पास अप्रोच किस तरह करता है, अपॉइंटमेंट किस तरह होता है, चेकअप किस तरह होता है, फिर ऑपरेशन तक जाता है तो किस तरह जाता है, पैसे दे सकने वाला क्या पैसे दे सकता है और जो ना देने वाला है वो क्या कहता है आपको? जनाब LRBT के दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं, जैसे आपने कहा ना, गरीब है, मुस्तहिक है या इस्तात रखते हैं, वो जब एंटर होते हैं तो उनकी स्लिप बनती है, कंप्यूटराइज स्लिप, जिसमें उनका नाम और आइडेंटिटी कार्ड नंबर वगैरह जो कंप्यूटराइज स्लिप होगी, जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो बायोडाटा पूरे पाकिस्तान में वो सर्कुलेट हो सकता है अगर वो हमारी ब्रांच के अलावा भी कहीं जाना चाहे तो। उसके बाद उसका पहले मुआयना होता है, इसमें नजर उसकी चेक होती है, उसके बाद जो डॉक्टर है वो उसको देखता है, उसके देखने के बाद अगर कोई खास इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है तो अस्पताल में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम फैसिलिटीज मौजूद हैं, सहूलियात मौजूद हैं, उस पेशेंट से 1 रुपया भी इन्वेस्टिगेशंस के लिए नहीं लिया जाता। सही। इन्वेस्टिगेशंस अगर उसी दिन जरूरी है तो उस दिन भी की जा सकती है, या उसको अपॉइंटमेंट करीब के दिनों में अकॉर्डिंग टू हिज सिवियरिटी कि वो है कितना सिवियर, अदरवाइज सेम दिन भी उसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशंस हो सकती हैं और फिर उसका डॉक्टर फिर दोबारा जायजा लेता है। और अगर ऑपरेशन की जरूरत है तो ऑपरेशन तो अगले दिन भी किया जा सकता है और अगर उस दिन भी हो तो उस दिन भी किया जा सकता है। सही। अच्छा नजमुल साकिब हमीद साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। अच्छा, सारी बात आपने सुनी, मैंने शाह साहब से की। जी मैं आपको सिर्फ एक चीज आप कह जी। रहे थे, आप बात कर रहे थे ना कि पाकिस्तान के अंदर आंखों के इतने लोग आते हैं तो आंखों का मर्ज जो है वो तो काफी फैला हुआ होगा। जी 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 मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा था आपको जी। कि पाकिस्तान नंबर 3 है इन द वर्ल्ड, सारी दुनिया के अंदर, अच्छा जिसके आंखों की कमजोरी और बीनाई का मसला है। अच्छा। तीसरा नंबर जी, तो ये तो बहुत बड़ी एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। हाँ 11% हमारे आबादी के जो लोग हैं ना जी, वो या तो नाबीना हैं और या ऐसे हैं जो लोग जिनकी नजरें कमजोर हैं। सही। तो नाबीना है वो तो 1% है और 10% ऐसे हैं जिनकी नजरें कमजोर हैं और अगर उनका इलाज ना किया गया ठीक टाइम पे तो वो उनकी नजर जो है, उनकी जो रोशनी जो है आंखों की, वो बिल्कुल जा सकती है। अल्लाह। अच्छा मुस्तकबिल के क्या प्लान्स हैं साकिब साहब? मुस्तकबिल तो जी अभी हम कोरंगी हॉस्पिटल जो हमारा फ्लैगशिप हॉस्पिटल है उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। अच्छा एक्सपेंड कर। उसके बाद ये है कि जो नॉर्थ कराची वाला जो है वो इस वक्त बहुत, उसकी स्पेस बहुत कम है, इस वजह से उसको हम एक नई जगह नॉर्थ कराची में एक नया अस्पताल बनाएंगे। अच्छा अच्छा। उस पर तो एक डोनर भी मिल गया है, वो सारा जमीन भी हमें डोनेट कर रहा है, बना भी हमें। वाह वाह माशाल्लाह, मुबारक। जी बहुत माशाल्लाह जी। ठीक है। लखानी से। अच्छा दूसरी बात ये कि ये जो एक हम नया अस्पताल खोलना चाह रहे हैं जी। रहीमिया खान में, अच्छा। उसके भी डोनर हमने लाइन अप कर लिए हैं, माशाल्लाह। तो वो भी काम अगले इस साल के एंड में वो भी शुरू हो जाएगा। क्या बात है। आपसे एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होगी, तो और भी 2-3 बातें जो मेरे जहन में वो करते हैं। एक मुख्तसर सा ब्रेक की बात होती है, दोबारा मुलाकात। खुश आमदेद, आप देख रहे हैं बरकत रमजान न्यूज 1 से बराह रास्त इफ्तार के बाबरकत लम्हात में, और इस वक्त सेगमेंट है एक नेकी, जिसमें LRBT के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ हैं शाबुल हसन, और स्काइप पर हैं LRBT के चेयरमैन जनाब नजमुल साकिब हमीद साहब, उनसे गुफ्तगू हो रही है। अच्छा साकिब साहब ये बताएं, ये कोविड-19 की वजह से क्या पेशेंट कम हो गए हैं, बीमारी खत्म हो गई है, ये हुआ क्या है कि सारी OPDs में जो है वो काम बंद है, लेकिन नई बीमार या नए बीमारियों से अमवात का कोई जिक्र नहीं है, कहीं कोई खबर नहीं है? देखिए जी, हुआ ये है कि गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये किया कि जी सारे OPDs और सर्जरीज एक्सेप्ट फॉर वेरी इमरजेंट केसेस उन्होंने वो बंद कर दिए थे। ठीक है। ठीक। सो हुआ ये कि फिर हमने कंप्लाई करना पड़ा जी, ये तो हुक्म था तो उसको तो करना चाहिए। ठीक है। तो फिर हमने अपने बंद कर दिए, लेकिन हमने हमारा हर अस्पताल के अंदर एक इमरजेंसी सेंटर भी होता है। अच्छा। जहाँ
रात को भी या किसी वक्त भी वो पेशेंट आ सकता है अगर उसको किसी इलाज की आंख के इलाज की जरूरत हो. सही. तो वो तो खुला था. ठीक है. और उसमें हम टेली मेडिसिन भी करते थे, टेलीफोन पे एडवाइस भी देते थे. अच्छा. ये दोनों चीजें हो रही थी. सही. और अभी भी हो रही हैं. सही. लेकिन अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने, गुलजार साहब मेरा ख्याल है उस बेंच को हेड कर रहे थे, जी. तो उन्होंने एक जजमेंट पास की है कि ये ओपीडीज और सर्जरीज खोल दी जाए. ठीक है. तो वो अब ये है कि हम खोल रहे हैं और हम करीब थे वही जो पहले रौनक होती थी वो है. लेकिन हमको सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी और भी बहुत सारे इकदाम जिनमें ये है कि जी हैंड वॉशिंग कराएंगे हर पेशेंट की जब वो आए हमारे अस्पतालों में. मास्क उसको हम ऑफर करेंगे. फिर उनकी जो सीटिंग अरेंजमेंट ये होगा कि वो 6 फुट के वक्फे पे वो बैठेंगे. सही. तो में लिमिट तो हो ही जाएगा क्योंकि सही. इतने पेशेंट नहीं आ सकेंगे. अब करंगी में 1300 पेशेंट अमूमन आते हैं. ठीक है. और कभी कभी तो पीक हो जाता है 1600-1650 पेशेंट. अच्छा. हाँ, तो अब वो इतने तो नहीं आ सकेंगे. इतना तो अगर आप 6 फुट एक साइड पे और 6 फुट एक साइड पे रखेंगे नहीं कर तो सकते. पॉसिबल. यानी आपके लिए तो 6500 लोगों की भी जगह चाहिए इस हिसाब से देखें तो. हाँ. ठीक है. अच्छा ये बताए टोटल अब आपके हॉस्पिटल कितने हो गए पाकिस्तान में? 19 है जी इस वक्त और 58 क्लिनिक्स है. अच्छा, एक सवाल था जो मुझे शायद सबसे पहले करना चाहिए था, वो ये कि आंखों का ही हॉस्पिटल बनाना चाहिए पूरे पाकिस्तान में वो हो भी जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन और हो भी खैराती. लोग पैसे दे के इलाज कराना चाहे तो भी कर सकते हैं और वैसे भी किसी के पास इस्तिताअत नहीं है तो वो भी इलाज करवा सकता है. ये सारा मरकजी ख्याल, सेंट्रल आइडिया, ये थॉट ये आई कैसे? कोई और काम भी तो हो सकता था, राशन बांटने का हो सकता था, कोई और हॉस्पिटल कैंसर का हो सकता था, हार्ट का हो सकता था. यही काम करना है, इसी तरह से करना है, इसका ख्याल कैसे आया था? देखिए हमारे जो 2 फाउंडर्स थे ना, ग्रैहम लीटन और ज़कार रहमतुल्लाह, अच्छा. वो 1984 में रिटायर हुए. अच्छा. अच्छा, जब रिटायर हुए तो उन्होंने कहा कि देखो ये हमने बहुत अपने लिए कर लिया है. हमारे सारे बच्चे तो खैर ग्रैहम लीटन के तो बच्चे ही नहीं थे. अच्छा. सारे बच्चे जो थे शादीशुदा थे और सर्टन थे. ठीक है. तो उन्होंने कहा अब कुछ हमको पे बैक करना चाहिए. सही. कंट्री. ठीक. तो उन्होंने ये अस्पताल शुरू किया, मतलब वो एक मोबाइल यूनिट, हम शुरू हुए थे कि मोबाइल यूनिट से. अच्छा. मोबाइल यूनिट जो चंडो बागों में हम लेके गए थे. अच्छा. तो जहाँ पहले हमने अस्पताल भी बनाया था. सही. तो शुरू उधर से हुआ. आंखों को बताइए क्यों किया कि आंखों के शोबे को, तो इस वजह से कि उस वक्त एक वर्ल्ड बैंक WHO की रिपोर्ट आई थी. अच्छा. और उसमें कहा गया था कि आंखें वो 10 इमराज में से एक इमराज है जिसपे जो सबसे जरूरी है. अच्छा. क्योंकि एक तो उस पर इतना खर्चा नहीं होता जितना जैसे कैंसर पे होता है. ठीक है. दूसरा है कि आप एक आदमी की और उसकी फैमिली की एक सारी जिंदगी बदल देते हैं. हाँ. जब आंखों से बेचार होता है तो वो एक भीख मांगने पर रुक जाता है या किसी के ऊपर बोझ बन जाता है. सही. लेकिन जब आप उसकी रोशनी, उसकी आंखों की रोशनी रिस्टोर कर देते हैं तो फिर वही वो पैसे अपने पांव पे खड़ा हो सकता है. सही. और वो अपनी फैमिली के लिए काम कर सकता है, पैसे कमा सकता है, उनको एजुकेट कर सकता है. तो ये इस वजह से, क्योंकि ये आप जितना आप इसको जितना आप अच्छाई या गुड बनाते हैं तो इसमें इस शोबे में था. बिल्कुल ठीक हो गया. अच्छा शाह साहब ये बताएं कि अब जब ये कोविड-19 थोड़ा सा थमेगा तो आपको लगता है कि पेशेंट्स की स्पीड वही पहले वाली होगी या उससे भी ज्यादा हो सकती है? तो उसके लिए कोई तैयारी हो रही है? जी, जैसे हमारे चेयरमैन ने आपसे तस्करा किया कि जनाब सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन रखी जाएगी और उसके साथ साथ हमारी जो एंट्रेंस होती है उस पर भी टेम्परेचर असेसमेंट के लिए मौजूद होते हैं लोग. डिसइंफेक्टेंट भी हाथ में चीजें मौजूद होती हैं. डिस्टेंस भी रखा जाएगा. पेशेंट भी हम बहुत सारे एक साथ अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे. हाँ, रश तो होगा, बहुत से लोग तो निकल नहीं रहे घरों से. एक तो वो, दूसरी कि देखिए ना हॉस्पिटल में जितनी हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट थी, मिसाल के तौर पे जितनी भी एक जगह बैठने की 450 लोगों का है, पहले वो 450 बैठते थे और
तकरीबन 150-200 लोग उनके साथ खड़े हुआ करते थे। हाँ, वो तो बच्चे है। हैं, बड़े हैं। अब ये क्या हो गया कि हमें एक स्पेसिफिक डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो हमें पेशेंट की डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रखनी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना है कि कहीं आने वाली नई बीमारियां हमसे ओवरलुक ना हो जाएं। सही, ठीक है। मैं न्यूज़ 1 की जानिब से और अपनी जानिब से सारे देखने वालों को, सुनने वालों को ये गुजारिश करूंगा कि जहां आप रमजान मुबारक में दीगर फलाही इदारों की मदद करते हैं माली तौर पर, वहां LRBT को जरूर याद रखें। और इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो पाकिस्तान दुनिया का वो तीसरा मुल्क है जहां आंखों की बीमारियां सबसे ज्यादा हैं, और इसके अलावा जैसे साकिब साहब ने बताया कि WHO ने भी ये कहा है, उसकी डायरेक्शंस हैं, उसका ये कहना है कि 10 जो है बड़ी बीमारियों में से एक बीमारी आंखों की या आंखों से मुतालिक है, जिसका ठीक होना, सही होना और दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। इलाज इतना महंगा नहीं है, लेकिन जैसे कि बताया गया कि सिर्फ LRBT को साल में 1.5 अरब रुपयों की जरूरत पड़ती है। 1.5 अरब रुपयों की जरूरत पड़ी, यानी 150 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है। तब ये इतने पेशेंट, तकरीबन 33 लाख के करीब पेशेंट जो है उन्होंने अब तक जो है ना वो देखने हैं और हर साल देखने हैं। अगर आप और हम ज़कात, खैरात, फितरात, अतियात से इनकी मदद नहीं करेंगे तो ना ऐसे हॉस्पिटल चल सकते हैं, ना ऐसे गरीब लोगों की मदद हो सकती है। अपने काम को ये और बढ़ाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी जदीद है, एनवायरनमेंट प्रोफेशनल है, हिफ्ज़ान सेहत के तमाम उसूलों को सामने रखते हैं, स्टाफ ट्रेन है, मुखलिस हैं, हम सब जानते हैं, एक अरसे से काम कर रहे हैं। तो मैं ये आपसे अपील करूंगा कि अपनी ज़कात, खैरात, फितरात, अतियात, बिलखुसूस माह रमजान में जबकि एक नेकी का सवाब कई गुना ज्यादा मिलता है, अजर बढ़ा दिया जाता है, तो आप माली तौर पर इस माह में LRBT की जरूर मदद करें। आखिर में नजमुल साकिब हमीद साहब को पैगाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। नहीं, मैं आपने बहुत अच्छा दे दिया। मैं तो ये कह रहा था कि सारों से गुजारिश करूं जी। कि LRBT की मदद करें जहां तक हो सकता है, अपने ज़कात और अपनी एहतियात भेजें। इससे हम बहुत देखिए, इस वक्त 2 करोड़ 30 लाख लोग ऐसे हैं जो नाबीना हैं या जिनकी आंखें कमजोर हैं। अच्छा। इनके 80% इनमें से ऐसे हैं जो इनकी हम नजर को बिल्कुल वापस रोशन कर सकते हैं। अच्छा। तो आप हमें ये एहतियात और ज़कात देंगे तो इनसे हम इन लोगों की आंखें रोशन कर सकेंगे। और देखिए ना, हमने 4 करोड़ 40 लाख लोगों का तो इलाज किया। हम चाहते ये है कि इस साल और बढ़ते जाए और बढ़ते जाए और बढ़ते जाए, क्योंकि ये हमारी पोजीशन जो है तीसरे से लेके हाई भी हो जाए, चार्ज से चली जाए। अच्छा, आप तक पहुंचने का या आप तक फंड्स को पहुंचाने का तरीकाकार क्या है? देखिए, बहुत आसान है जी। हमारा एक यूनिवर्सल एक्सेस नंबर है, फ्री है, उसको आप ज्वाइन करें। 0800 ये 400-4441, ठीक है, 400-441। ठीक है। तो अगर आप इस पे ज्वाइन करें तो आपको गाइड कर देगा कहाँ जाए। आप बहुत सारे हमारे बैंक हैं, बैंकर UBN है, HBN है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, बैंकर हबीब है, वहाँ जाके भी जमा करा सकते हैं। सही। या इधर आप फोन कर देंगे इस नंबर के ऊपर तो हम आपका एहतियात भी आके पिक कर लेंगे, जहाँ तक वो कराची में हो। कराची से बाहर हो तो फिर जरा यह है कि सबसे अच्छा यही है कि बैंक में जमा करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नजमुल साकिब हमीद साहब, आपने स्काइप से हमें ज्वाइन किया। इतना नेक और अच्छा काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी हिम्मत, ताकत, तौफीक अता फरमाए, हम इनका साथ दे सकें। आखिर में 30 सेकंड है, शाह साहब आप कुछ कहना चाहें? जी हाँ, बस ना कहूंगा कि मुसलमानों के नाते हम सब जानते हैं कि नेकी का काम तो अल्लाह चलाता रहेगा, चलता आया और चलता रहेगा, और हमारे होने न होने से ये नहीं है कि कोई नेकी काम खुदा न खास्ता अल्लाह रोक देगा। मगर सोचना क्या है कि क्या मैं इस नेकी के हिस्से में कुछ शरीक हो सकता हूँ? Am I be the part of it? I think we should step ahead. हमें आगे आना चाहिए और अपने लिए भी और अपनी कौम के लिए भी कुछ करना चाहिए, जिसका अजर हमें दुनिया में और आखिरत में अल्लाह दोनों में देगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलते हैं ब्रेक की जानिब, वापस लौटेंगे बज़्म इल्म अकीदत में। आज हमारा मौजू है अच्छी गुफ्तगू, साथ साथ नजरान अकीदत भी पेश करेंगे। अल्लामा निसार उजागर साहब हमारे साथ होंगे और नजरान अकीदत पेश करेंगे हाफिज गुलाम मुस्तफा कादिर साहब। दीगर सनाखा, दीगर उलमाए कराम, आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद।